Hello friends, let us discuss two important things in today's session. So first of all we will discuss about arrays and different types of arrays and how to create it, and later on we will discuss what are the drawbacks of arrays, and there is one more construct which is available in case of Java, that is called as a collection and vectors. So first of all we will discuss about an array. From C programming onwards, you are saying what do you mean by array? So you know about array. What is array? Array is an homogeneous collection of data items. So this is an representation of array, and you are very much familiar with this type of representation. Okay, so this is very simple representation. All of you have already used in the C programming, in data structure, in object oriented programming, and all other programming concepts, right? So array starts from index 0. So if you have an array of size 5, okay, or length 5 or capacity 5, then you are having an index starts from 0 up to 4. So there are 5 elements which are present in the array, and they are numbered from the index 0, 1, 2, 3 and 4. Now important thing is that array is a collection of data, but the data is homogeneous in nature. What do you mean by homogeneous? Homogeneous means okay, all data items or elements are of a single data type or similar data type. ठीक है, सो यदि इंटीजर हम एरे बनाएंगे तो सारे डेटा मेंबर्स कैसे आएंगे? इंटीजर आएंगे. यदि डबल डेटा टाइप का एरे बनाएंगे तो सारे डेटा एलिमेंट्स डबल आएंगे, एंड सो ऑन. कैरेक्टर का बनाएंगे तो सारे डेटा मेंबर्स कैरेक्टर्स आएंगे. So it is not possible that you are having an array of size 5, and out of which you are having 2 elements of integer data type, 2 elements of double data type, 1 element of carry data type. It is not possible. So heterogeneous data elements are not possible. Only homogeneous data elements are possible in case of array representation. So this is an integer array in which you are having all 5 integers, and indices are 0 to 4. So you know about this homogeneous data collection, right? So learning objective is we have to understand the concept of array in Java. So here it is, the definition is given to you, right? So array can be created in a two-step. It is a two-step process. It is just like a variable declaration. In a step 1 you can declare a variable. In a step 2 you can initialize the values to the variable. Similarly in array also you can do the declaration of array, and in the next step you can initialize the value. So this is one more representation of array. If you are having an array, name of the array is number, and then you are having these indices. This is the content of the array. Content means data. Again this number array is also integer array. ये कौन सा array है? Integer array है. ठीक है, तो कौन कौन से टाइप के एरे होते हैं? 1 डायमेंशनल होते हैं, आपको पता है 1 डायमेंशन एरे होता है, 2 डायमेंशन एरे होता है. यदि आपको कोई मैट्रिक्स दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो 2 डायमेंशन एरे लगता है आपको. ओके, अदरवाइज हम जनरली कौन सा एरे यूज करते हैं? 1 डायमेंशन एरे. तो एरे डिक्लेयर करने के 2 तरीके होते हैं. ठीक है, 2 फॉर्म्स होते हैं. मैंने ये भी पहले भी बताए थे अलग सेशन में. ठीक है, तो जहां आपको एरे की जरूरत थी उस समय मैंने ये बताया था. ठीक है, तो ऐसे ही है जावा के अंदर बहुत सारी चीजें रिपीट होती है, लेकिन आपको उसे क्या करना है? भूलना नहीं है, याद करके लेना है. हर बार आपको याद करना है. ठीक है, तो कैसे होता है एरे का रिप्रेजेंटेशन? ठीक है, तो पहले तो क्या होगा? डेटा टाइप, उसके बाद एरे का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट. सो डेटा टाइप, दिस इज एन एग्जांपल. डेटा टाइप है इंटीजर, एरे का नाम है नंबर, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट. और एक तरीका है जिसमें डेटा टाइप, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और बाद में एरे का नाम. ये भी आप यूज कर सकते हो. डेटा टाइप, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और लास्ट में एरे का नाम. सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल. बोथ रिप्रेजेंटेशन आर करेक्ट. तो ये क्या है? आपका डिक्लेरेशन है. यहाँ पर आपने वैल्यूज नहीं दी है. सो दिस इज जस्ट एन डिक्लेरेशन ऑफ एरे. जब आप वैल्यू देंगे, मेमोरी एलोकेशन करेंगे, तो वो डेफिनेशन बन जाएगी. आप वैल्यू और डिक्लेरेशन एक साथ कर सकते हो. जैसे वेरिएबल के लिए रन टाइम इनिशियलाइजेशन है, वैसे ही एरे के लिए भी रन टाइम इनिशियलाइजेशन अवेलेबल है. ठीक है, तो आइदर आप उसे डिक्लेयर करो, बाद में वैल्यूज दे दो, मेमोरी एलोकेट करो. अदरवाइज दूसरी केस में क्या कर सकते हो आप? दूसरे केस में वेरिएबल डिक्लेयर भी करो, साथ साथ उसकी मेमोरी एलोकेशन भी करो, या उसके लिए जो भी वैल्यूज देने हैं एरे के अंदर, कंटेंट देना है, वो भी बता दो. सो बोथ वेज आर पॉसिबल. लेकिन ये दिखाते समय 2 तरीके के फॉर्म है. पहले फॉर्म में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, डेटा टाइप, उसके बाद एरे का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट. यहाँ पर टाइप हुआ है, एक्चुअली टाइप नहीं है, ये डेटा टाइप है, ये आपको समझना है.
तो ऐसी मिस्टेक हो सकती है। ओके, दिस पीडीएफ इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग ओनली, सो हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो आपको ये समझ के लेना है, दिस इज नॉट अ टाइप एक्चुअली, इट इज एक्चुअली डेटा टाइप। टाइप इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन डेटा टाइप लिखना बहुत ज्यादा क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो डेटा टाइप, उसके बाद एरे का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। जो भी मिस्टेक रहते हैं यहाँ पर मैं बार उस जो लेक्चर और सेशन लेता हूँ उसी समय आपको बताते जाता हूँ, तो आपको उसे क्या करना है, लिख के रखना है उसी समय, ठीक है। ऐसे नहीं बोलना है कि पीडीएफ में मिस्टेक थी उसके साथ मैंने किया, ये नहीं चलेगा। ओके, जावा इज वेरी केस सेंसिटिव लैंग्वेज। शायद पीडीएफ फैकल्टी ने नहीं बनाई होगी, लैब असिस्टेंट ने बनाई होगी, कि कोई टाइपिस्ट होगा उसने बनाई होगी, ठीक है। तो मिस्टेक हो सकती है उनसे, इट इज पॉसिबल। उनको पता नहीं है टाइप और डेटा टाइप में क्या अंतर है, ठीक है। तो और केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, अपर केस लोअर केस बहुत मायने रखता है जावा के अंदर। ये फैकल्टी मेंबर को पता होता है, लेकिन उनके असिस्टेंट को पता नहीं होता है बहुत जगह पर, तो इस वजह से ये हो सकता है। तो आपको उसे नजरअंदाज नहीं करना है, उसी समय वहां पर आपके नोटबुक में उसे पिन पॉइंट करके रखना है। और मैं बताऊंगा, श्योरली बताऊंगा कोई मिस्टेक होगी तो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आइदर आप क्या करो, ये तरीका यूज करो, अदरवाइज डेटा टाइप दे दो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो, उसके बाद एरे का नाम दे दो, बोथ आर करेक्ट। एरे का नाम आप नंबर दे दो या नंबर दे दो, इट इज अप टू यू। नेम ऑफ द एरे इज अप टू यू, यू कैन गिव इट एज पर योर ओन विश। क्रिएशन करना मतलब डिक्लेयर करना, उसके बाद डेफिनेशन देना। क्रिएशन मतलब डेफिनेशन, तो अलग अलग तरीके हैं, आप ये ऐसे यूज करेंगे वैसे पता चलते चलेगा। तो ये एक तरीका है जहां पर आप क्या करो, डेटा टाइप, उसके बाद एरे का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू, जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही हम एरे में भी करेंगे। ये भी एरे हमारा डिराइव कंस्ट्रक्ट है, डिराइव डेटा टाइप है, आपको पता है, इट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो वहां पर आपको न्यू ऑपरेटर की जरूरत होगी मेमोरी एलोकेशन के लिए। न्यू जो भी डेटा टाइप होगा एरे का, आईएनटी है तो आईएनटी, और उसके बाद ब्रैकेट में 10, 10 ये उसकी साइज है, आपको 10 एलिमेंट चाहिए तो 10 आएगी, ठीक है। 5 चाहिए तो 5 आएगी, 20 चाहिए तो 20 आएगी, इट इज अप टू यू। इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू इनिशियलाइज इन दिस मैनर ओनली। जैसे आप क्लास के लिए करते हो वैसे ही एरे के लिए करना है। केवल चेंज ये है कि क्लास के अंदर हम ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं, एरे के अंदर रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, स्क्वायर ब्रैकेट, जहां पर आपको साइज देनी होती है। सो रिमेंबर दिस पार्ट वेरी क्लियरली, ठीक है, ठीक है। सो एरे इज अगेन अ डिराइव्ड डेटा टाइप। तो ये जो एरे बनेगा जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स रहेंगे और सारे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के रहेंगे, इंटीजर डेटा टाइप के रहेंगे, ठीक है। सो अगेन दे हैव रिप्रेजेंटेड हियर, ओके, दैट एरे रिप्रेजेंटेशन। देन इनिशियलाइजेशन, आपने यहाँ पर साइज दी दी एरे की, लेकिन एरे के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है वो ठीक है, लेकिन 10 एलिमेंट कौन से है ये यदि बताना होगा तो आपको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। इनिशियलाइजेशन करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। आप पहले तरीके में ऐसे यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ 0 इक्वल टू 50, मतलब आपका जो नंबर एरे है उसके अंदर साइज कितनी है, उसकी 10 है लेटर सपोज, तो 0 से लेके 9 तक, इंडेक्स 0 से लेके इंडेक्स 9 तक आप एलिमेंट्स को भर सकते हो, उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। तो नंबर ऑफ 0 इक्वल टू 50, मतलब 0th इंडेक्स का एलिमेंट 50 है। नंबर ऑफ 1 इक्वल टू 60, मतलब फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट 60, एंड सो ऑन। ऐसे आप उसे लिख सकते हो। अदरवाइज आप साइज देने के बदले डायरेक्टली ये रिप्रेजेंटेशन भी यूज कर सकते हो, ये भी ऑल्सो पॉसिबल, दिस ऑल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। जहां पर आप क्या करो, डेटा टाइप बताओ, एरे का नाम बताओ, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो, इक्वल टू, न्यू ऑपरेटर लगाने के बजाय, मेमोरी एलोकेशन के लिए बताने के बजाय आप डायरेक्टली एलिमेंट्स दे दो, तो अपने आप ये नंबर जो एरे है, जो इंटीजर एरे है, ये क्या करेगा, अपने आप साइज आइडेंटिफाई करेगा। तो साइज क्या है नंबर एरे की, 5 एलिमेंट्स, 5 साइज उसकी 5 होगी, और वहां पर नंबर 0 से लेके नंबर 1 नंबर 4 तक एलिमेंट्स रहेंगे। तो खुद पता कर लेगा, आपको केवल क्या करना है, कॉमा देके एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करना है। ये इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन शायद आपने सिप में भी दिया होगा, ठीक है। जो न्यू ऑपरेटर वाला रिप्रेजेंटेशन ये जावा के अंदर नया है, ये पहले नहीं था, ठीक है। सो अदरवाइज आई थिंक यू हैव यूज्ड दिस रिप्रेजेंटेशन इन सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। लेकिन केवल आप 2 स्टेप में यूज करते थे, एक स्टेप में नहीं लिख सकते थे। जावा के अंदर डायनेमिक इनिशियलाइजेशन होने के बजाय डिक्लेयर भी करो, साथ साथ उसके आगे उसके वैल्यूज भी दे दो, ठीक है। सो दिस इज न्यू थिंग विच यू आर लर्निंग इन केस ऑफ जावा। आप जैसे प्रोग्राम लिखते जाओगे वैसे इसकी प्रैक्टिस भी होगी, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। कैसे रिमेंबर करना है, एरे क्या है इतना पता होना चाहिए, सिंटैक्स पता होना चाहिए, बाकी सारी चीजें आप अपने आप कर लोगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो एरे की यदि साइज लेनी है आपको,
ठीक है, कौन कितने एलिमेंट्स है, उसकी साइज कितनी है, वो लेने के लिए हमें मेथड है, हमारे पास एक मेंबर वेरिएबल है, उसका नाम है लेंथ। अब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मेंबर वेरिएबल है, याद रखो लेंथ क्या है, आपके एरे का मेंबर वेरिएबल है। तो आपने यदि इंटीजर एरे क्रिएट किया हो, या डबल एरे क्रिएट किया हो, या आपने फ्लोटिंग पॉइंट एरे क्रिएट कर किया हो, कोई भी एरे क्रिएट किया हो, हर एक एरे का जो साइज है वो आप उसे डिटेक्ट कर पाओगे। किससे डिटेक्ट कर पाओगे, ये मेंबर वेरिएबल से डिटेक्ट कर पाओगे, उसका नाम क्या है, लेंथ है। ठीक है, और बहुत सारे मेथड्स भी एरे के अंदर प्रेजेंट है। ओके, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से मेथड्स है। सो लेंथ मेथड, सॉरी कैपेसिटी नाम का एक मेथड है, साइज नाम का एक मेथड है। ठीक है, उससे बहुत सारे मेथड्स भी अवेलेबल है, जो मेथड्स क्या करते हैं आपके लिए उस एरे की कैपेसिटी कितनी है, साइज कितनी है, ये बता देते हैं। तो लेंथ क्या है, मेंबर वेरिएबल है, वैसे ही मेंबर फंक्शन भी अवेलेबल है, बाद में देखेंगे हम मेंबर फंक्शन कौन कौन से है। अभी के लिए इतना याद रखो, लेंथ नाम का एक मेंबर वेरिएबल है एरे के अंदर, जो आपको एरे की साइज के बारे में बताता है। 10 है, 20 है, 5 है, 10 है, 25 है, 50 है, 100 है, जो भी है। ठीक है, दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ एरे, जहां पर एरे को डिक्लेयर किया है, एरे का नाम क्या है, A1। ओके, ये फैशन परफेक्ट है, ये लिख सकते हैं हम, A1 इक्वल न्यू इंट ऑफ 3, मतलब उसकी साइज 3 दे दी। अलग अलग स्टेप में किया, एक स्टेप में भी ये कर सकते थे हम, इसे एक स्टेप में लिख सकते थे, लेकिन ये हमने 2 स्टेप में किया। ठीक है, उसके बाद साइज तो 3 है, लेकिन कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2। तो वो एलिमेंट्स क्या है ये बताने के लिए हमने A1 ऑफ 0, A1 ऑफ 1, A1 ऑफ 2, और जो भी ये वैल्यू दे दिए थे वो हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिए। सो दिस इज वेरी बेसिक एग्जांपल, जिन्होंने सी और डेटा स्ट्रक्चर किया है उन्हें ये बहुत इजी लगेगा, लेकिन नया क्या है आपके लिए, ये केवल डिक्लेरेशन नया है, ये हम जावा के अंदर ही करते हैं बाय यूजिंग अ न्यू ऑपरेटर। ठीक है, क्योंकि जावा के अंदर एरे क्या है, डिराइव डेटा टाइप है, और जो भी डिराइव डेटा टाइप होगा, नॉन प्रिमिटिव होगा, वो हर एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को मेमोरी एलोकेट करने के लिए न्यू ऑपरेटर की जरूरत होती है। रीजन मैंने आपको पहले भी बता दिया है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनकी साइज फिक्स है, पता है आपके कंपाइलर को, इसलिए मेमोरी कितनी लगेगी ये ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने आप मेमोरी दे देता है। लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव है, जो डिराइव डेटा टाइप है, उनके लिए कितनी मेमोरी लगेगी ये आपके कंपाइलर को पता नहीं है। ये पता नहीं है, इसलिए हमें बोलना पड़ता है कंपाइलर को, यू हैव टू फाइंड आउट, आपको पता नहीं है ना, कंप्यूट करो, कैलकुलेट करो, ये कंप्यूट करो, कैलकुलेट करो, ये बताने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, न्यू ऑपरेटर की जरूरत होती है। ठीक है, तो एरे हमारा क्या है, डिराइव डेटा टाइप है, अब फिक्स हो गया, क्योंकि एरे के लिए हम न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं, मतलब आपका एरे डिराइव डेटा टाइप है, हमेशा याद रखो। ठीक है, 2 डायमेंशन एरे क्रिएट करना होगा तो सेम फैशन, ओके, इंस्टेड ऑफ 1 डायमेंशन इट इज 2 डायमेंशनल, सो 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स इन दिस वे। नंबर्स यदि आपको 2 डायमेंशनल बनाना है तो इस तरीके से आप उसे रिप्रेजेंट करोगे, बाद में उसे साइज भी दे दोगे, सो यू आर गिविंग अ साइज 3 by 3, so 3 rows and 3 columns. Okay, so total you are having a 9 elements. So you know about a 2-dimension array also. Okay, this is an representation. रो 0 में क्या आ सकता है, रो 0 के अंदर कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, बाद में रो 1 के अंदर कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड सो ऑन। तो इंडाइसेस देखो 0 0 0 1 0 2, बाद में 1 0 1 1 1 2, बाद में 2 0 2 1 2 2। जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते थे मैथमेटिक्स में, जो डायरेक्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स है, या जिन्होंने फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स पढ़ा है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, उनको पता है आप मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते थे, रो नंबर 1 2 3 देते थे, यहाँ पर कॉलम नंबर 1 2 3 लिखते थे, और यहाँ पर जो इंटरसेक्शन होता था वहां पर 1 1 1 2 1 3, बाद में 2 1 2 2 2 3, बाद में 3 1 3 2 3 3। ये हमने यूज किया है मैट्रिक्स के ऊपर, बहुत सारे ऑपरेशंस किए है, अलग अलग इनवर्स निकाला है मैट्रिक्स का, बाद में सारी चीजें की है, वहां पर आपने ये रिप्रेजेंटेशन हर एक ने यूज किया है मैथमेटिक्स में। केवल यहाँ पर क्या करना है जावा के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर, 1 से स्टार्ट करने के बजाय 0 से स्टार्ट करना है। तो 1 1 की जगह पर क्या आता है, 0 0 आता है, 0 1 आता है, 0 2 आता है। ठीक है, वैसे 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, इतना चेंज है, बाकी सारी चीजें सेम है, मैट्रिक्स फॉर्मेट में जैसे लिखते थे मैथमेटिक्स में वही है, केवल इंडेक्स 0 से स्टार्ट करना है और जो भी टोटल साइज होगा उससे एक कम करना है। ठीक है, स्टॉप करने के लिए। देन दीज 2 क्वेश्चंस आर गिवन टू यू। ठीक है, तो आप ये सॉल्व करने की भी कोशिश कर लो बाद में। So this is an array, regarding array, okay, and types of an array. So next one is
So now we will see the next point, that is वेक्टर। ओके, पहले तो ये देखेंगे वेक्टर की जरूरत क्या है और उसके बाद हम वेक्टर के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो पहले जरूरत सीखते हैं। अभी अभी हमने देखा कि एरे का यूज क्या है और ये सबको पता था एरे का यूज, ठीक है। बाद में एरे का हम यूज भी करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, बहुत कुछ प्रोग्रामिंग करना है तो हर जगह पर आपको एरे का यूज होगा। ओके, अभी ऐसे मत सोचो कि हमने केवल कंसेप्ट किया, वी विल यूज इट in our practical sessions also. Now the important thing is that array का प्रॉब्लम क्या था? array का प्रॉब्लम ये था कि array की साइज को हम चेंज नहीं कर पाते थे। एक बार आपने array को डिक्लेयर कर लिया, उसकी साइज 50 रख दी, तो आपको वहां पर दो प्रॉब्लम फेस करने हुए। array के बारे में दो प्रॉब्लम फेस करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है array के लिए कि आपको परफेक्टली पता होना चाहिए कि आपका array कितने साइज का है, how many elements you are getting in that array. So if it is fixed initially and it will not changing over the period of time, in that cases array is very useful quantity. क्यों array useful है? क्योंकि वो sequential contiguous representation है। तो आपको यदि एक्सेस करना है एलिमेंट्स को तो बहुत इजीली आप यूज कर पाओगे उसे। डेटा स्ट्रक्चर में भी आपने देखा, लिंक लिस्ट को एक्सेस करने के बजाय एरे को एक्सेस करना बहुत इजी है क्योंकि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस है। इंडेक्स से पता चलता है कहां पर एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन लिंक लिस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पॉइंटर का यूज करना पड़ता है। सो दैट पॉइंटर कंसेप्ट इज नॉट देयर इन केस ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। तो लिंक लिस्ट का सवाल ही नहीं है, यहाँ पर उत्पन्न नहीं होता। अब पॉइंट यह है कि एरे की लिमिटेशन अब भी वही है। लिमिटेशन क्या है एरे की? यदि आपने परफेक्टली साइज दी है और आपकी साइज यदि चेंज नहीं हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देन एरे इज वेरी यूजफुल क्वांटिटी और यूजफुल एंटिटी। बट इफ द साइज ऑफ द एरे इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आज आपने एरे डिक्लेयर किया जिसकी साइज 100 थी, अब 2 महीने के बाद आपको पता चल रहा है कि एरे जो आपने डिक्लेयर किया था जिसकी साइज 100 थी, ये काफी नहीं है और बड़ा एरे चाहिए जिसकी साइज 500 चाहिए। नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो आपको यदि कुछ करना ही होगा तो अलग से एरे बनाना पड़ेगा जिसकी साइज क्या होगी? 500 होगी, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है। अदरवाइज आपको ऐसा एरे बनाना होगा जिसकी साइज 400 होगी और दोनों एरे को कंबाइन यूज करना पड़ेगा। पहला वाला एरे जिसकी साइज 100 थी, दूसरा एरे जिसकी साइज 400 थी। सो इट इज टीडियस टास्क। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको और एक एरे बनाने की जरूरत होती है। जब साइज इंक्रीज होती है तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं, यू हैव टू यूज वन मोर एरे। रिवर्स केस में देखते हैं, आज आपने एरे बनाया जिसकी साइज आपने 500 दे दी, आपने सोचा कि ज्यादा साइज लगेगी तो 500 दी थी, लेकिन आपको पता चला 6 महीने के बाद ये 500 साइज की जरूरत ही नहीं है। आपके एलिमेंट्स के 50 एलिमेंट है, देयर आर ओनली 50 एलिमेंट्स प्रेजेंट, ज्यादा से ज्यादा 70 हो जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं होने वाले। सो व्हाट यू आर डूइंग इट, you have created an array of 500 size, but you are only using a 50 elements, so entire 450 elements are wasted. तो आपने 500 का एरे बना दिया, 50 एलिमेंट यूज किए और 450 एलिमेंट क्या है? वेस्ट हो रहे हैं आपके, वेस्टेज है ना। तो आपने तो कैपेसिटी तैयार की है लेकिन कैपेसिटी का यूज ही नहीं हो पा रहा है। 550 में से 450 की कैपेसिटी क्या है? वेस्टेड है, मतलब 90% वेस्टेज हो रहा है, 10% यूज है। आप देख सकते हो 5 10 5 50, right ना? Okay, so you are using only 10% of the capacity of total capacity. So this is called as a underutilization. ये जो केस है उसे बोलेंगे underutilization. अदरवाइज जो फर्स्ट केस थी जहां पर एरे की साइज बढ़ाने की जरूरत थी, दैट इज कॉल्ड एज ओवर यूटिलाइजेशन। ये जो प्रॉब्लम है वो एरे में आती है क्योंकि एरे की साइज के ऊपर लिमिटेशन है। तो हमें ऐसा कोई एंटिटी चाहिए, ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। एरे क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है, सबको पता है। अब ये किसी ने तो नहीं बोलना चाहिए आई डोंट नो एरे इज एन डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर लास्ट सेमेस्टर के फर्स्ट या सेकंड टॉपिक में हमने देखा है, चैप्टर में देखा है, एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर। और क्यों है ये भी देखा है हमने। सो नाउ इट इज रिक्वायर्ड। ऐसे नहीं होगा कि थर्ड सेमेस्टर का भूल गए, फोर्थ सेमेस्टर में आ गए, ये नहीं चलेगा, ठीक है। सो you should require some data structures, okay, which can increase its size on its own. ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर चाहिए वो खुद अपनी साइज को इंक्रीज करता है, खुद अपनी साइज को रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिक्रीज भी कर पाएगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस इन नेचर। सिंक्रोनस मतलब परिस्थिति के अनुरूप खुद को क्या करना? ढाल देना, खुद को क्या करना? चेंज करना एज पर द रिक्वायरमेंट। अब बहुत आपने सुना होगा न्यू नॉर्मल ऑफ ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। मतलब क्या है? परिस्थिति ऐसी है को मास्क पहनना अब अनिवार्य है अगले कुछ सालों तक,
ठीक है, एटलीस्ट अगले कुछ सालों तक वैक्सीनेशन हो ना हो, आपने वैक्सीन ली या ना ली, ओके, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. यू हैव टू you have to use the mask, wear the mask, you have to follow sanitization rules and social distance. That is very important. ठीक है, तो ये पहनना कुछ ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये न्यू नॉर्मल बन चुका है ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक. तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने परिस्थिति के हिसाब से खुद को क्या क्या चेंज किया ना. एनवायरमेंट जैसे चेंज हुआ, ओके, हमारा जैसा नेचर चेंज हुआ, उसके हिसाब से आपने खुद को चेंज किया. सिमिलरली आपके पास ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है, साइज अपनी चेंज कर पाएगा. दैट इज कॉल्ड एज अ सिंक्रोनस. ओके, उसे बोलेंगे हम सिंक्रोनस. हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है ह्यूमन बॉडी का, वो सिंक्रोनस होता है. ओके, आप उठ सकते हो, बैठ सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो. इट इज सिंक्रोनस इन नेचर एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द नीड, उसे बोलेंगे सिंक्रोनस. तो बहुत लोगों को ये पता ही नहीं चलता है, ये वर्ड पता नहीं चलता है. और डिग्री होने के बाद कभी हम पूछते हैं वेदर एरे इज अ सिंक्रोनस और नॉट, तो बोल नहीं पाते व्हाट इज सिंक्रोनस. ओके, तो सिंक्रोनस ही पता नहीं है. सो एरे इज नॉट अ सिंक्रोनस डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि एरे अपने आप अपनी साइज को कम ज्यादा नहीं कर सकता है. It cannot increase or decrease its own size. That's why array is not a synchronous data structure. The solution which occurs for this particular problem, that is a vector. ये पहला solution था जो आ गया. Okay, उसका नाम क्या है? Vector है. तो vector ये synchronous है. Vector can increase or decrease its own size as per the requirement. ठीक है, ये vector के बाद बहुत सारे data structure आ गए बाद में, okay, जो synchronous थे, कि अपने आप अपनी साइज को कम ज्यादा कर सकते थे, अलग अलग फंक्शनलिटी कर सकते थे. ऐसे बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर आ गए, वो जनरली जेडीके 5 के बाद आ गए, जावा 1.5 के बाद आ गए. तो जिन्होंने जावा 1.4 तक पढ़ा था, पहले पढ़ा था पुराने, तो वहां उनके लिए वे वेक्टर नहीं था, कंसेप्ट ही नहीं था. तो इवॉल्व होता है टेक्नोलॉजी, क्या ऐसे नहीं है कि ये स्टैटिक है, टेक्नोलॉजी चेंज होते रहता है. जब हम पढ़ते थे 12-13 साल पहले, 14 साल पहले, उस समय जावा केवल शुरुआती स्टेजेस में था, तो वेक्टर, केवल वेक्टर आया था. ओके, आपकी सिलेबस में भी, आपके रेफरेंस बुक में भी वेक्टर के बारे में जिक्र किया था, और केवल एरे तक सीमित था, बाकी सारा पार्ट. तो बहुत कम कंटेंट था उस समय, डिग्री कोर्स के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो हमने डिग्री में पढ़ा था वहां पर इससे भी बहुत कम कंटेंट था, डिप्लोमा से भी कम था, क्योंकि वो नया था ना उस समय. उस समय जावा पढ़ाने वाले, ओके, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों कम थे, टीचर भी कम थे, क्योंकि पता नहीं था, लोग पढ़ रहे थे, नया सीख रहे थे. इंडस्ट्री से क्या हुआ था, एकेडमिक के पास ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, लेकिन एकेडमिक्स में सारे लोगों ने ये पढ़ा नहीं था. ठीक है, तब तक केवल वेक्टर जस्ट इनिशिएट हुआ था. और अगले 7-8 साल में ये वेक्टर के साथ और बहुत सारे सिंक्रोनस डेटा स्ट्रक्चर आ गए, और उस सिंक्रोनस डेटा स्ट्रक्चर को अब नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज अ कलेक्शन. ठीक है, सो दैट कलेक्शन इज नॉट देयर in your curriculum, so we will not discuss that collection part. Okay, it is a part of advanced Java programming, so probably we will discuss in the next semester if our curriculum allows us. Okay, so currently it's not required, but remember that vector ये starting point है किसका, सिंक्रोनस डेटा स्ट्रक्चर का, और अपने करिकुलम में वेक्टर तक है, सीमित है, तो हम वेक्टर देखेंगे. ठीक है, तो वेक्टर कहाँ है, वेक्टर एक बेसिकली एक क्लास है. एरे हमारा क्लास नहीं था, वेक्टर क्लास है. ठीक है, सो वेक्टर क्लास कहाँ पर प्रेजेंट है, यूटिल पैकेज में प्रेजेंट है. तो आपको यदि वेक्टर यूज करना है तो यूटिल पैकेज यूज करने की जरूरत है. तो यूटिल पैकेज इसके पहले भी आया था स्कैनर क्लास के समय, तो स्कैनर क्लास भी यूटिल पैकेज में है, वेक्टर क्लास भी यूटिल पैकेज में है. ये पैकेज के बारे में हम पढ़ेंगे अगले एक नेक्स्ट वीक में, या उसके नेक्स्ट वीक में हम पैकेज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग याद रखो, वेक्टर इज अ क्लास विच इज प्रेजेंट इन अ यूटिल पैकेज. वेक्टर इज एन डायनामिक एरे, क्या बोला है उसे, डायनामिक एरे बोला है, विच कैन ग्रो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. सो उसका डायमेंशन फिक्स नहीं होता है, तो उसका डायमेंशन चेंज होते रहता है एज पर द रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो वेक्टर कैसे डिक्लेयर किया जाता है, यदि वेक्टर क्लास है, जैसे स्कैनर क्लास था तो उसका ऑब्जेक्ट बनाते थे. ठीक है, तो यदि वेक्टर क्लास है तो वेक्टर का भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसे मेमोरी एलोकेट करेंगे, वेरिएबल की तरह नहीं होगा उसका. ठीक है, वो क्या होगा, नॉन प्रिमिटिव डिराइव्ड डेटा टाइप होगा. तो वेक्टर को हम क्या बनाएंगे, वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. तो ऑब्जेक्ट का नाम दिया है लिस्ट, सो यू कैन एलोकेट द मेमोरी. So this particular vector, sorry, this particular construct, this particular object is using a default constructor. constructor यूज कर रहा है डिफॉल्ट, और इनिशियल साइज क्या दिया है 10. ये किसने एलोकेट किया, सिस्टम ने एलोकेट किया. मतलब ये जो लिस्ट नाम का ऑब्जेक्ट बना है, वेक्टर का ऑब्जेक्ट बना है, वो एरे जैसा ही है,
ओके, एरे जैसा ही एलिमेंट्स को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, और उसकी साइज कितनी है, 10 है। तो 10 अलग अलग एलिमेंट आप लिस्ट में क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसे देखते समय एरे की तरह ही देखो, लेकिन खासियत क्या है एरे से, इसकी उसकी साइज कम ज्यादा बाद में हो सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये और एक कंस्ट्रक्टर है। वेक्टर क्लास में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर तैयार करके दिए। ये पहले तो था वो डिफॉल्ट था जिसकी इनिशियल साइज 10 होगी। अदरवाइज आप खुद से भी साइज दे सकते हो। आप चाहते हो कि आपको वेक्टर तो का ऑब्जेक्ट तो बनाना है लेकिन उसकी साइज आपको देनी है 50, यू कैन गिव इट। सो पैरामीटर भी है, सिंगल पैरामीटर वाला भी कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर क्या है, क्या है देखो, सिंगल पैरामीटर है, इंटीजर। आपके पास और एक वेक्टर का कंस्ट्रक्टर है जहां पर दो पैरामीटर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला पैरामीटर है वो साइज और दूसरा पैरामीटर इंक्रीमेंट। अब मतलब क्या है देखो, आपने इनिशियल साइज ली है 20 और इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, जब ये इंक्रीमेंट, जब ये आपकी साइज एग्जॉस्ट हो जाएगी, यूज हो जाएगी, 20 एलिमेंट्स आ जाएंगे और फिर भी आपको एलिमेंट उसमें डालने हैं, तो कितने डालने हैं, तो किसके हिसाब से, इंक्रीमेंट के हिसाब से। तो इंक्रीमेंट में हमने 5 दिया, तो 20 एलिमेंट्स यूज होने के बाद यदि आप और एलिमेंट स्टोर करना चाहते हो तो कितने कितने से साइज बढ़ेगी, 5 से बढ़ेगी, 20 से 25 बन जाएगी। 25 भी आपने यूज किया और आप बढ़ाना चाहते हो तो 25 से 30 बनेगी। 30 भी यूज किया और बढ़ाना चाहते हो तो 5 से बढ़ेगी, 35 बन जाएगी। सो आपके वेक्टर को कितने एलिमेंट से ग्रो करना है, बढ़ाना है, ये कौन बताता है हमें, ये इंक्रीमेंट पैरामीटर बताता है। और एक चीज आपने इसमें देखी है, ये तीनों कंस्ट्रक्टर है, पहला, दूसरा, तीसरा। क्या हुआ है यहाँ पर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हुआ है। इसीलिए मैंने बताया था कंसेप्ट जो है जावा के अंदर वो सारी लास्ट चैप्टर तक लगेगी हमें। ओके, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है ये पढ़ा हमने, लेकिन अलग अलग क्लास में हुआ है ना। जो नए नए क्लास देखेंगे वैसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बहुत जगह पर दिखेगा आपको। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन वेक्टर क्लास। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक भी पैरामीटर नहीं है, यहाँ पर सिंगल पैरामीटर है, यहाँ पर दो पैरामीटर है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का डेफिनेशन क्या है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैन बी हैपन ओके इन फॉलोइंग इंस्टेंसेस। कब कब हो सकता है कि आइदर नंबर ऑफ पैरामीटर चेंजेस, ये नंबर ऑफ पैरामीटर चेंजेस हुआ है, और डेटा टाइप ऑफ द पैरामीटर चेंजेस, यहाँ पर डेटा टाइप चेंज नहीं किया है हमने, और ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर चेंजेस। तो यहाँ पर क्या हुआ है, नंबर ऑफ पैरामीटर। पहले वाले कंस्ट्रक्टर में 0 पैरामीटर, दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर में सिंगल पैरामीटर, तीसरे वाले कंस्ट्रक्टर में 2 पैरामीटर। और भी वेक्टर के कंस्ट्रक्टर है लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है उतने दिए गए हैं। ठीक है, फॉर यूर यूज। बहुत सारे हैं, प्रोग्रामर को बहुत सारे यूज करने पड़ते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जहां पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज किए गए। और एक चीज आपको कैरेक्टर के बारे में समझनी है, जैसे एरे में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है वैसे ही वेक्टर में भी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो एरे यदि साइज 10 का होगा तो एरे स्टार्ट होता है 0 इंडेक्स से, खत्म होता है 9 इंडेक्स को। वैसे ही यदि वेक्टर यदि साइज 10 का होगा तो वेक्टर स्टार्ट होगा इंडेक्स 0 से और खत्म होगा इंडेक्स 9 पर। तो ये वेक्टर भी एरे की तरह बिहेव करता है, एरे की तरह ही बिहेव करता है। लेकिन वेक्टर क्लास है तो वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और उसे न्यू ऑपरेटर से मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है। एरे के समय हम प्रिमिटिव डेटा टाइप का ही यूज करते हैं जनरली, नॉन प्रिमिटिव भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, केवल मेमोरी एलोकेट करनी है। तो एरे का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन अलग है। ये ऑब्जेक्ट का यूज करके रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर के समय, एरे के समय ऑब्जेक्ट का यूज करके नहीं करेंगे, डायरेक्टली एरे के नेम से रेफर करेंगे। सो जैसे हम ये और ज्यादा पढ़े और ज्यादा हम उसके ऊपर काम करेंगे, मतलब एरे भी बनाएंगे प्रोग्राम में, कभी कभी वेक्टर भी बनाएंगे, तो उस समय और अच्छी तरह से समझ में आएगा। और एक वेक्टर की खासियत है, इतना ही नहीं है कि वेक्टर केवल साइज को कम ज्यादा कर सकता है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है वेक्टर के अंदर। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेक्टर के अंदर हेटेरोजेनियस डेटा एलिमेंट्स आ सकते हैं। इट इज पॉसिबल, हेटेरोजेनियस डेटा इज पॉसिबल इन केस ऑफ वेक्टर। In case of array, only homogeneous data is possible. So this is one new thing in case of vector. अब हेटेरोजेनियस का मतलब क्या है, हेटेरोजेनियस मतलब आपने वेक्टर बनाया जिसकी साइज 5 थी, लेट अस सपोज, जिसके अंदर 2 इंटीजर एलिमेंट्स लाए, बाद में 2 डबल एलिमेंट्स लाए और एक कैरेक्टर एलिमेंट लाया और उसे स्टोर करने की कोशिश की। इट इज पॉसिबल, यू कैन स्टोर इट। ठीक है, अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल को, अलग अलग डेटा टाइप को आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। मैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ इस चीज को।
आपने एक एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाया है, ये एम्प्लॉय क्लास आपका डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर है, नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है। और अब आपने एक वेक्टर बनाया, लेट अस सपोज उसका नाम है v1 नाम का वेक्टर बनाया और उसकी साइज है 3। v1 ये वेक्टर की साइज कितनी है 3। तो v1 के अंदर आपने क्या किया, पहले एक इंटीजर स्टोर किया, बाद में आपने एक फ्लोटिंग पॉइंट एलिमेंट स्टोर किया, फ्लोट डेटा टाइप का एलिमेंट स्टोर किया, ठीक है। तो 3 में से 2 एलिमेंट तो आपने स्टोर कर लिए और एक एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और उस ऑब्जेक्ट EMP नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट को मैंने वेक्टर के अंदर स्टोर किया। क्या मैं ये कर सकता हूँ? यस, यू कैन डू इट। वेक्टर का डेफिनेशन क्या है? वेक्टर कैन ग्रुप हेट्रोजीनियस डेटा। अब हेट्रोजीनियस डेटा तो पहले इंटीजर था, ठीक है, बाद में फ्लोट आया, हेट्रोजीनियस है, ठीक है, ये तो पता चला आपको। लेकिन ये EMP कैसे आपने स्टोर किया? EMP तो क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसे कैसे आपने स्टोर किया? अब देखो, वेक्टर ने ऐसे कहीं पर भी नहीं बोला है कि मैं हेट्रोजेनियस डेटा स्टोर करूंगा, लेकिन हेट्रोजेनियस डेटा हमेशा प्रिमिटिव डेटा टाइप का होना चाहिए, ऐसे वेक्टर ने नहीं बोला है कभी भी। INT फ्लोट डबल ये प्रिमिटिव है, तो प्रिमिटिव के एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं वेक्टर में, ये सबको पता चलता है। वो हेट्रोजीनियस भी हो गए, ये भी पता चलता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है? जब क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर करने जाते हैं तब। वेक्टर ने ऐसे कहीं पर भी नहीं बोला है कि वेक्टर केवल प्रिमिटिव डेटा टाइप यदि हेट्रोजीनियस है तो उन्हें स्टोर कर सकता है। वेक्टर ने ऐसे बोला है, वेक्टर कैन स्टोर हेट्रोजीनियस डेटा, सो वेक्टर कैन स्टोर प्रिमिटिव एज वेल एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव को भी स्टोर करेगा, नॉन प्रिमिटिव को भी स्टोर करेगा, और यदि वो हेट्रोजीनियस है तो भी स्टोर करेगा। तो यदि EMP का ऑब्जेक्ट भी आप स्टोर करना चाहते हो वेक्टर में तो आप स्टोर कर सकते हो, इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो क्लास का ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हो, क्योंकि क्लास भी एक एम्प्लॉय क्लास भी एक क्या है हमारा, क्या बनेगा, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। आपने खुद ने बनाया हुआ है ना, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप, तो उसका भी ऑब्जेक्ट आप स्टोर कर पाओगे बिकॉज इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। ये बात केवल समझनी है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें बहुत ईजी है। दीज आर द मेथड्स ऑफ वेक्टर क्लास, यू कैन गो थ्रू दिस मेथड्स। हमें ये मेथड को एक एक बार देखने की जरूरत नहीं, जहां जहां यूज होगा ये मेथड्स का वहां पर हम कर देंगे, ठीक है। जब तक हम ये करके नहीं देखेंगे तो तब तक मतलब नहीं है। लेकिन आप ये क्या करो, ये गो थ्रू करो, ये मेथड को क्या करो, टेबल बना के रखो आपके बुक में, ओके, ये टेबल पूरा बना के रखो। तो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट मेथड्स रहेंगे वो मैं यूज करूंगा प्रोग्राम के समय और आपको बताऊंगा। So you can make the table of this particular methods in your notebook. Okay, this is your task. Here the difference between array and vector is given. You also make this table. Okay, यहाँ पर दिया गया है, फिर भी आप जो भी हमने डिस्कस किया है अभी तक, क्योंकि ये सारा इसमें आ गया है। सेम डेटा टाइप, हेट्रोजीनियस डेटा टाइप, फिक्स लेंथ, बाद में ये क्या है, नॉन फिक्स लेंथ, यहाँ पर सिंक्रोनस, नॉन सिंक्रोनस, एरे का डिक्लेरेशन कैसे करना है, वेक्टर का डिक्लेरेशन कैसे करना है, एरे इज हैविंग अ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं होता है, ये क्या है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, यहाँ पर आएगा नॉन सिंक्रोनस, यहाँ पर आएगा सिंक्रोनस, ये सारी पॉइंट, सारी चीजें यहाँ पर दी है। कुछ चीजें ऐसी है रैपर क्लास वगैरह वो हमने नहीं देखी है, वो हम देखेंगे। लेकिन यू हैव टू मेक दिस टेबल, डिफरेंस टेबल, ये बना के रखो। इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स अपने आप आपको समझ में आएंगे, जो पॉइंट्स नहीं समझ में आएंगे ये बाद में जैसे हम आगे अगले कॉन्सेप्ट सीखेंगे उस समय ये पता चलेंगे। सो यू कैन मेक दिस टेबल ऑफ डिफरेंस बिटवीन एरे एंड वेक्टर। तो आपको इस सेशन में क्या क्या करना है, वेक्टर के मेथड को आपको रिप्रेजेंट करना है, उसका टेबल बनाना है, और ये डिफरेंस का भी टेबल बनाना है। Then you can solve these questions. Vector class is present in java.util package. So it is very simple question. A dash method gives the name of the object present at index location. तो वेक्टर की एक मेथड है element at. ये मेथड क्या करती है, पर्टिकुलर इंडेक्स पे, इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स में जो भी आपका एलिमेंट होगा, ऑब्जेक्ट होगा या एलिमेंट होगा, उसे क्या करती है, रिट्राइव करके देती है। ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वेक्टर क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को यूज करके, सॉरी, वेक्टर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके मेथड को हम यूज कर पाएंगे, और उसके साथ हम काम कर पाएंगे। सो विल सी इट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।